Okay, now we will discuss a linear inequality. In linear inequalities. What is linear inequalities? When symbol comes like greater than, less than, greater than equal to, or we can say less than equal to. These four symbols indicate that inequality. Okay, these four symbols indicate that inequality. Okay, जो हमारी inequality होती है basically two types की होती है. We can write in this format that inequality is two types. First is numerical inequality. Okay, numerical inequalities. Then second one is lateral inequalities. Okay, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में? अगर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी मीन्स हमारे पास न्यूमेरिकल में डाटा दिया हो, मीन्स लाइक 5 इज ग्रेटर देन 2. ओके, न्यूमेरिकल लाइक डाटा. ये लैटरल इनइक्वालिटी के अंदर क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरिएबल्स. ओके, हियर क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई. जैसे एक इक्वेशन लिखी है 5x² प्लस 2x इज ग्रेटर देन 17. दैट मीन्स हियर इज द वेरिएबल x. इस फॉर्मेट में जब भी हमें डाटा गिवन होता है दैट मीन्स लैटरल इनइक्वालिटी का अंडर कंसीडर करते हैं. और जब भी हमारा डिजिट के फॉर्म में हमारा डाटा दिया हो दैट मीन्स न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज. ओके, इसके लिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. प्रॉपर्टीज़ को कि इनइक्वालिटी के केस में हम कैसे अपनी ऑपरेशन से अप्लाई करते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. प्रॉपर्टी 1, P1. Okay, according to the P1 property, if number A is greater than B, okay, and B is greater than C, then definitely A will be greater than C. A will be greater than C. अगर हम एक एग्जांपल लेके भी इसको समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई 5 नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 4. ओके, एंड 4 इज ग्रेटर देन 3, देन डेफिनेटली अगर हम इससे रिजल्ट देखें तो 5 इज ग्रेटर देन इज आल्सो द 3. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी मुझसे कह रही है. ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी 2, P2. ये बेसिक प्रॉपर्टीज है और हमें पता होना जरूरी है. This is important property. Okay, property number 2 is important. That is, by adding or subtracting in an inequality, sign remains same. Okay, what I'm saying? I'm saying that when if A is greater than B, इस तरीके से अगर हमें दिया हुआ है कुछ भी, then means if we adding something or subtracting something, addition, subtraction. Okay, when we adding something means like A plus M is also greater than B plus M. ओके, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी में जो हमें इनइक्वालिटी दी हुई है उसमें अगर हम किसी टर्म को ऐड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी साइन रिमेन सेम होगा. सब्ट्रैक्टिंग मीन्स अगर हम किसी भी नंबर्स इनइक्वालिटी की जो हमें इक्वेशन दी है उसमें से कुछ घटाते हैं तब भी सब्ट्रैक्ट करने पे भी हमारा इनइक्वालिटी साइन रिमेन सेम. ओके, ये हमसे ये प्रॉपर्टी कह रही है. ओके, सो वी कैन combined format we can write like a plus minus m is also greater than b plus minus m. okay, ये प्रॉपर्टी हमारी सेकंड है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. by adding or subtracting, that means by adding or we can say subtracting, inequality sign remains same. okay, sign remains same. Now we will discuss property third, P3. In a P3, this property is related to the multiplication of any number. Okay, अगर मुझे given है means A is greater than B. okay, if we have given A is greater than B, इसके भी दो केसेस हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के, मीन्स पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन. ओके, पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन मीन्स जो नंबर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए.
If we multiply a positive number, then inequality sign remains same. Okay, inequality sign remains same. Positive multiplication means we can say m is greater than 0. Okay, negative multiplication means we can say m is less than 0. Okay, जब भी हम एक नेगेटिव मल्टीपल का मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में, then inequality sign will change. Okay, so here is m a is less than m of b. तो हमारा कुछ रिजल्ट इस तरीके से हो जाता है. That means we can say here is, यहाँ हम बोल सकते हैं inequality remains same. यहाँ पे हम क्या कहेंगे, inequality sign change. Inequality sign change. Okay, now we will discuss P4. If A is greater than B by reciprocal. Okay, by reciprocal means by reciprocal means in this format, 1 by A and 1 by B. What will be the sign? Inequality sign will change. Okay, by reciprocaling, by reciprocal, अगर हम reciprocal करते हैं इसको, then inequality sign will change. Okay, remember, important things is that remember A and B, A P का multiple that should be greater than 0. इसको हमें रिमाइंड रखना है. ओके, इससे इंटरलिंक रखना है कि जब भी हम हमारा A ग्रेटर देन B है, बी रेसिप्रोकल द नंबर, देन इनइक्वालिटी साइन विल चेंज. Inequality change. Okay, remember AB should be greater than 0. That means we can say A and B both should be positive. Wait, we will write the same term here. इसको मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ, A and B both positive, or we can say A and B both negative. Remember, because negative two numbers multiply, then definitely positive number will obtain. Okay, and two numbers are positive, then definitely result will positive. Okay, now we will discuss the property 5, P5. After completing the all theory part of the inequality, we will jump on a previous year questions. Okay, after solving the many previous year questions related to the ND exam, we will conclude and also relate our theory part, means properties related with the question. Okay, so be patient. P5, if A is greater than B, B is greater than 0, means A and B both are greater than 0, and n is greater than 0. N is means power should be positive. N is power is positive. Okay, जब भी ये हमें इस तरीके से रिजल्ट गिवन हो, that means we can directly write if apply the operation, then we can say taking the power, a to the power n will be greater than b to the power n. Okay, remains same. Inequality remains same. Is it clear? And we can also write the result in this format, or we can say that result is also write a to the power 1 by n is greater than b to the power 1 by n. Is it clear? ये भी हमारा पॉसिबल केस हो सकता है. रिमेंबर n शुड बी पॉजिटिव. रिमेंबर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. रिमेंबर what? That is n should be positive, or we can say
1 by n should be also positive. Is it clear? ये हमारा होना चाहिए. Now we will discuss P6. P6. Okay, if base to the power m is greater than same base to the power different power. Okay, in this case the operation is, if we apply the operation, the result of inequality will depend on the base. Okay, it has also two cases, case 1 and case 2. Okay, when case 1 is a means base is greater than 1, second one case is base is greater than 0 and less than 1. Okay, दो केसेस होंगे, फर्स्ट केस आपका ये हो गया, देन सेकंड केस ये हो गया. When base is greater than 1, then a to the power m is, so we can directly say same base, then power can be comprised m is greater than n. Okay, we can directly say remains same. इनइक्वलिटी साइन क्या होगा आपका? remains same. Why? base is greater than 1. Okay, अगर आपका बेस ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, तो आपका इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा. ओके, इनइक्वलिटी साइन चेंज. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनइक्वलिटी साइन चेंज. तो एक कॉमन सा रिजल्ट ये फाइंड होके आता है कि जब भी बेस आपका लेस देन 1 होगा एंड वी अप्लाई द ऑपरेशन, जब भी बेस हमारा लेस देन 1 होगा एंड वी अप्लाई द ऑपरेशन, इनइक्वलिटी साइन विल चेंज. ओके, ये तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, एक्सपोनेंशियल और वी कैन से एंटीलॉग फॉर्म. ओके, सेम कंडीशन अगर मैं लॉग के केस में अप्लाई करते हैं. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी P6. ओके, सेम अगर मैं अप्लाई करते हैं लॉग के केस में, वही फंडा है सेम. लॉग m बेस a इज ग्रेटर देन लॉग n बेस a. ओके, सेम टू केसेस हमारे यहाँ पे बन के आएंगे. पहला केस जब हमारा बेस क्या होगा? ग्रेटर देन 1. देन सेकंड केस क्या होगा? बेस हमारा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1. ओके, अगेन सेम वही P6 प्रॉपर्टी का रूल, दैट इज यहाँ पे क्या होगा हमारा? दिस बेस ग्रेटर देन 1 मीन्स इनइक्वलिटी रिमेन सेम. यहाँ पे क्या होगा? इनइक्वलिटी साइन चेंज. इज इट क्लियर? दो केसेस हो गए सेपरेटली. ओके, और तो जब इनइक्वलिटी साइन रिमेन सेम, सो वी कैन से result will be, what will be the result? We can write m is greater than n. ओके, यहाँ पे क्या हमारा रिजल्ट निकल के आएगा? इसके अकॉर्डिंग m is less than n. ओके, m is less than n. Is it clear? Now P8 property, very important, related to the मॉडुलस फंक्शन के बारे में एक आइडिया है P8 प्रॉपर्टी के अंदर. ओके, मॉड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो जाता है किसी भी क्वेश्चन से, वो चाहे कैलकुलस का हो, अलजेब्रा का हो. ठीक है, लॉग से रिलेट कर देगा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर देगा. ठीक है, तो इसकी कंडीशन को समझ लेते हैं. जब भी हमें अगर दिया हो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू है, बेसिकली इसका रिजल्ट हमारा क्या होता है? डायरेक्टली रिमाइंड, इसकी वैल्यू -a से लेके a के बीच में लाई करेगी. ओके, नाउ सेकंड वन इज इफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, it indicate that it has two possible cases. X is greater than equal to a, then second one is x is less than equal to -a. ये रिजल्ट कैसे हम फाइंड करते हैं? तो देख लेते हैं. जैसे अगर हमारे पास कर्व है, एक गिवन कर्व है मॉड का. ओके, वी हैव अ गिवन कर्व मॉड एक्स, वी शेप कर्व. ओके, वी शेप कर्व होती है मॉड एक्स की इन दिस फॉर्मेट. इज इट क्लियर? दिस इज अ वाई एक्सिस. वाई एक्सिस हमारी क्या है? लॉग, सॉरी, मॉड एक्स. वाई एक्सिस हमारी मॉड एक्स है, y इक्वल टू मॉड एक्स. दिस वन इज x. इज इट क्लियर? अच्छा,
अगर हम x इक्वल टू ए लेते हैं, ए बी कंसीडर x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू माइनस ऑफ ए, x इक्वल टू माइनस ऑफ ए, y इक्वल टू क्या है आपका मॉड ऑफ x, ओके, y इक्वल टू क्या गिवन है मॉड ऑफ x। अगर हम x इक्वल टू ए पुट करते हैं तो हमारा y की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो अभी भी हमारा a आएगा। अगर हम x इक्वल टू माइनस ए पुट करते हैं, वी नो मॉड के अंदर नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव हो जाता है, दैट मीन्स रिजल्ट विल बी a। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जब हमारी वैल्यू हमारी माइनस ए थी तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट जो y की वैल्यू क्या मिली हमें, y इक्वल टू ए। इज इट क्लियर? जब x इक्वल टू ए पुट किया देन y की वैल्यू यहाँ पे भी मुझे क्या मिली a। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ मान लो कहीं a मिला मुझे, y इक्वल टू ए, दोनों की दोनों वैल्यू कहीं यहाँ कहीं लाई कर रही है, ठीक है। अब रिजल्ट हमारा क्या कहता है, पहला केस हमारा क्या बोल रहा है कि हमारा y मॉड x है ना, पहला रिजल्ट हमारा क्या है, ये मॉड x है, मॉड x को मैंने y बोला था, चेक हियर, y इक्वल टू मॉड x है ना, दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि y हमारा लेस देन इक्वल टू a आए, सेम रिजल्ट है ना, वी कैन से मॉड x हमारा क्या आना चाहिए लेस देन इक्वल टू a, तो मॉड x को हम क्या y भी तो लिख सकते हैं, मॉड x को हम क्या लिख सकते हैं y भी लिख सकते हैं। तो y हमारा लेस कब होगा, y हमारा लेस रिजल्ट कब देगा, जब ये हमारी ये कुछ लेस ये होना चाहिए, ये वाला लेस है ना, दिस इंडिकेट लेस, तो लेस वाला कर्व हमारा क्या होना चाहिए, दिस कर्व विल बी इंडिकेटेड फॉर द y is less than दिस कर्व लेस देन इक्वल टू ए। तो इस कर्व की रेंज कहाँ से कहाँ जा रही है, मतलब कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, माइनस ए से a। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट निकल के आया था, माइनस ए से लेके ए के बीच में हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं सेम कर्व को, अगर ऑब्जर्व करते हैं किसके लिए, व्हेन mod x is greater than equal to a, और वी कैन से और y is greater than equal to a, यही कहना चाहते हैं y is greater than equal to a, y is greater than equal to a क्या कहना चाहता है, मीन्स y की वैल्यू a से कितनी होनी चाहिए, a से बड़ी होनी चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए कि नहीं, a से बड़ी ऊपर की तरफ, मीन्स कब जाएगा ये a से बड़ी, जब भी हमारा ये y कर्व की नेचर क्या होगी इस तरीके की, ये हमारी कर्व की नेचर कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। और ये कर्व की नेचर किधर जा रही है आपकी, ये कर्व की नेचर कुछ इधर को जा रही है, मीन्स ए से बाहर की तरफ और इधर भी बाहर की तरफ, इज इट क्लियर, यहाँ से लेके यहाँ बाहर की तरफ जा रही है। तो यही इंडिकेट कर रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जब भी हमें y चाहिए ए से बड़ा, देन x आपका क्या होना चाहिए, x ए से बड़ा होना चाहिए, और वी कैन से x हमारा क्या होना चाहिए, x हमारा लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ ए होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, पूरा डिस्क्राइब किया अच्छे से मॉड कर्व के साथ में, ताकि एक क्लियरिटी भी रहे, सिर्फ रटना ही नहीं है, हमें समझना है, ग्राफिकली अप्रोच लेके चलनी है अपनी प्रिपरेशन में, ओके। दिस इज द प्रॉपर्टी P8। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टी 9, P9। दिस इज द प्रॉपर्टी P9, वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, यू कैन इजीली टू कैच। इफ वी राइट माइनस ए इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए, जब भी इस फॉर्मेट में लिखा हो, वी कैन आल्सो राइट if we squaring on both side negative term will be positive, तो x square will lie 0 to greater than 0 less than a square, okay, very important, okay, very important। before applying operation एक टर्म को रिमाइंड रखो, before applying operation we define the condition of inequality, ठीक है। चलो ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। दिस इज द P9 प्रॉपर्टी। नाउ वी विल कवर द प्रॉपर्टी 10, P10 inequality की 10th प्रॉपर्टी। If a b belongs to real number and b does not equal to 0, then we can say if a b belongs to R means real number and b does not equal to 0, then we can say ab is greater than 0 और a by b greater than 0, अगर इस तरीके के टर्म दिए हुए हैं, that means a and b both are same sign,
ए एंड बी, ये शायद मैंने प्रॉपर्टी कवर भी कराई है, ए एंड बी बोथ आर सेम साइन, हाँ ये मैंने कवर कराई है, थोड़ा सा हिंट दिया था इसके बारे में, ए और बी दोनों सेम साइन के होने चाहिए। सो वी कैन से ए एंड बी both should be positive, or we can say A and B both should be negative. Is it clear? तभी ये पॉसिबल केसेस हमारा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके। और अगर ए बी दोनों पॉजिटिव है, ए बी दोनों नेगेटिव है, देन दिस रिजल्ट विल कम्स आउट। अगर दोनों अपोजिट साइन के दिए हो तो क्या हो सकता है रिजल्ट? मीन्स सेकेंड वन केसेस, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, और हम कहना चाहें ए एंड बी, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं तो हमारा ये पार्ट ए है, दिस पार्ट बी है, ठीक है। ए एंड बी आर अपोजिट साइन, then result will be opposite like the above result है, okay। ए एंड बी अपोजिट साइन अगर इंडिकेट करते हैं तो हम क्या कहेंगे? we can say that AB should be less than 0, or we can say A by B should be less than 0, means both the signs are negative in nature, okay। अपोजिट है, सॉरी नेगेटिव नहीं, अपोजिट, मीन्स ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली ए कंसीडर पॉजिटिव देन बी शुड बी नेगेटिव। फर्स्ट केस हमारा ये हो सकता है, और वी कैन से ए नेगेटिव देन बी शुड बी पॉजिटिव, ओके, बोथ शुड बी अपोजिट टू ईच, ओके। तो ये दो केसेस हो गए हमारे इसके P10। यही कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। थ्योरी पार्ट पहले हम कवर कर रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो हमारे प्रीवियस आए हुए एनडी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बेबी कर्व, ओके ओके। बेबी कर्व, इसकी हेल्प से हम इनइक्वालिटी के जो डिफरेंट पावर के हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके रूट्स को एक लाइन पे ड्रॉ करके फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कर्व, बेबी कर्व। इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, उसको नोट डाउन कर लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारे के सारे स्टेप्स कवर अप होंगे। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इज दैट एंश्योर दैट द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x इज द सिंपल एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, ओके। लीडिंग कोएफिशिएंट of x, leading coefficient of x is the simple expression is positive। पहला स्टेप तो हमारा यही है। देन राइट हैंड साइड मस्ट बी जीरो, मतलब जो हमें फाइंड करना है इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, देन राइट हैंड साइड को मुझे मस्ट बी जीरो बनाना ही पड़ेगा। दिस इज द स्टेप ए, दिस इज स्टेप बी, ओके। ए बी फॉर्मेट दो लिखो, तो जैसे ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ठीक है। देन स्टेप 2 क्या है हमारा इसके अकॉर्डिंग? स्टेप सेकंड इज दैट, अच्छा स्टेप सेकंड लिखने से पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा लेते हैं बेबी कर्व किस तरीके से हम लिखते हैं। मीन्स x माइनस अल्फा 1 टू द पावर p1, x माइनस अल्फा 2 टू द पावर p2, x माइनस अल्फा 3 टू द पावर p3। इस तरीके से रूट्स है और उनकी पावर दी हुई है अप टू x माइनस अल्फा n टू द पावर pn। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर को भी इसी तरीके से रूट्स में लिख लेते हैं, x माइनस बीटा 1 टू द पावर q1, x माइनस बीटा 2 टू द पावर q3, x माइनस बीटा 3 टू द पावर q3 अप टू x माइनस बीटा n टू द पावर q ऑफ n, ओके। इस तरीके से फॉर्मेट में हमें रूट्स दिए और उनकी पावर दी हुई हो, और राइट साइड देखो राइट हैंड साइड मस्ट भी जीरो होनी चाहिए। दैट मीन्स जो हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, जनरलाइज जब केस लेके चल रहे हैं तो केसेस क्या हो सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इनइक्वालिटी का हो सकता है, ओके।
और हमारा क्या हो सकता है, सेकंड वन केस हमारा हो सकता है लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ग्रेटर देन 0, और वी कैन से लेस देन 0। 4 पॉसिबिलिटी केसेस ऑफ इनइक्वालिटी हो सकते हैं। देन यहाँ पे इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं, राइट हैंड साइड ओके मस्ट बी 0। तो मुझे कुछ इस फॉर्मेट में अपनी राइट हैंड साइड बनानी पड़ेगी, अगर नहीं बनी है तो आपको बनानी पड़ेगी बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन ऑफ इनइक्वालिटी। जितनी मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है उसी के बेसिस पे हमें अपने ऑपरेशंस लगा के राइट हैंड साइड को 0 बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे स्टेप 1 के अकॉर्डिंग। नाउ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं P1 P2 P3 क्या है। ओके, P1 P2 P3 अप टू P ऑफ n। ओके, इसी तरीके से एंड Q1 Q2 up to Q of n। okay, all are natural number, all are natural number, that means power of every root should be, जो आपका टर्म x माइनस अल्फा या x माइनस बीटा के टर्म में जो भी लिखा है उसकी पावर नेचुरल होनी चाहिए। ठीक है, ऑल आर नेचुरल पावर नंबर, all are natural power number। okay, all are natural number। okay, leading coefficient of x must be positive। remember leading coefficient of x must be positive। देखो मीन्स यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट x है उसको x है, x का कोफिशिएंट जितने भी सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन स्टेप सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज step second is very important, that is draw all the roots in a line, draw all the root in a line and apply operation from the end point of राइट साइड। ओके, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें सारे के सारे रूट्स को लाइन पे ड्रॉ करना है और ऑपरेशन अप्लाई करना है। मीन्स ऑपरेशन जो मैं स्टार्टिंग करनी है अप्लाई करने की वो एंड पॉइंट ऑफ द राइट साइड होना चाहिए, एंड पॉइंट ऑफ द राइट साइड। एक क्वेश्चन करेंगे डिस्कस तो सारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी नोट कर लो। स्टेप 3 क्या कहता है, when the odd power comes when odd power comes then inequality sign will change। okay, inequality sign change। okay, and when even power comes inequality remains same। okay, ये कुछ स्टेप्स है बेबी कर्व्स के जो मैंने आपको लिखाए हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, बाकी थ्योरी पार्टी है बट एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी इसकी, क्योंकि क्वेश्चन से ही सारी की चीज़ें क्लियर होती है, अदरवाइज सिर्फ थ्योरी पार्टी बने रहते हैं। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन इज गिवन दैट x minus 2 x plus 4 by 5 to the whole square x minus 1 to the power x minus 1 की पावर 1 है, then divided by x plus 2 by 3 to the power 3। okay, and x minus 3 whole square is less than equal to 0। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन में हमेशा बोलता हूँ, बिफोर अप्लाई एनी ऑपरेशन वी हैव टू डिफाइन द कंडीशन। ओके, अब इस क्वेश्चन में हम ऑपरेशन लगाने से पहले हमें अपनी कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज दैट
denominator does not equal to 0. That means denominator does not equal to 0. Before applying operation we define the condition. जब डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होगा, दैट मीन्स द रूट्स विच comes out from the denominator that act like a pole, okay, इस फॉर्मेट में दिया है. अब हम इस बेबी कप्स के कुछ स्टेप्स चेक करते हैं. पहला देखो, पहला स्टेप क्या था, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x इन द सिंपल एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव. तो लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x का हर एक कोफिशिएंट देखा जाए तो पॉजिटिव ही है. स्टेप 1 इज कंप्लीटेड. नाउ स्टेप सेकंड इज राइट हैंड साइड मस्ट बी 0. देन चेक राइट हैंड साइड इज 0. ओके, नाउ स्टेप सेकंड ड्रॉ ऑल द रूट्स इन अ लाइन. ओके, ठीक है. अब हम थर्ड स्टेप करते हैं एंड अप्लाई द ऑपरेशन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द राइट साइड. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे के सारे रूट्स को एक लाइन पे ड्रॉ करते हैं. ओके, किस पे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन पे. ठीक है, एक लाइन मैंने कंसीडर किया, दिस इज द लाइन. ओके, हमारे रूट्स कितने, 1 2 3 4 5 5 है ना, 1 2 3 4 5. जेट क्लियर, ये हमारे 5 रूट हो गए, 1 2 3 4 5. अब हम मेंशन करते हैं, पहला रूट हमारा x इक्वल टू 2 है, देन -4/5 यहाँ से 1 आएगा. ठीक है, एक 3 है तो मैंने 3 रूट एक यहाँ पे लिख दिया. ओके, और एक हमारा 2 भी है 1 भी है, सो 2 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, 1 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. ओके, यहाँ से मिलेगा -2/3, यहाँ से मिलेगा -4/5. ठीक है, तो -4/5 में आपका यहाँ कहीं लाई करेगा, -4/5 मीन्स 0.8. ओके ओके, दिस इज द रूट -4/5, यहाँ से पॉइंट. ओके, ये आपका -2/3. इज इट क्लियर, मैंने सारे के सारे रूट्स को मेंशन कर दिया. रिमेंबर, ये तो टर्म ध्यान रखना जो मैं रटा देता हूँ, बिफोर अप्लाइंग एनी ऑपरेशन वी डिफाइन द कंडीशन. तो इस गिवन क्वेश्चन की कंडीशन क्या डिफाइन की, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई द रूट कम्स आउट फ्रॉम द डिनोमिनेटर एक्ट लाइक अ पोल. एक्ट लाइक अ पोल व्हाट मीन्स, इसका मतलब ये है, तो जो -2/3 है एक पोल की तरह एक्ट करेगा, तो इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं कर सकते. ओके, नाउ 3 पॉइंट इज ऑल्सो एक्ट लाइक अ पोल, इसको भी हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने 0 को कंसीडर कर दिया, दैट मीन्स overall result will be not defined, क्योंकि 1/0 क्या होता है, not defined. Is it clear? Now this equality sign indicate that upper root is upper root के जो आपका रूट्स हैं वो भी इंक्लूडेड है. ठीक है ना, रूट्स भी इंक्लूडेड है, मीन्स मैंने पोल्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया, मीन्स ओपन सर्कल लिया, तो बचे कुछ को हम क्या लेंगे, क्लोज सर्कल, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, तो इसको हमने क्या किया, दिस वन इज क्लोज सर्कल, दिस वन इज ऑल्सो क्लोज सर्कल. ठीक है, इतना इंडिकेट करने के बाद ये हमारा स्टेप थर्ड हमसे क्या कहता है, स्टेप थर्ड इज सेइंग अप्लाई ऑपरेशन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द राइट साइड. तो अब हम राइट साइड से अपने ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और स्टेप थर्ड क्या है हमारा, व्हेन ऑड पावर कम्स द इनइक्वालिटी साइन चेंज. ओके, तो जो थर्ड रूट हमारा आ रहा है, मीन सबसे पहले देखो ग्रेटर देन 3 वैल्यू कोई लेके देखो, इफ यू सिलेक्ट अ वैल्यू ग्रेटर देन 3 मीन्स ओवरऑल रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. ओके, तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. तो पॉजिटिव से जब आप तीसरे रूट पे आए, तो तीसरा रूट कहाँ पे है, यहाँ से फाइंड हो रहा है, और इस तीसरे रूट की पावर क्या है, इवन. इस तीसरे रूट की पावर क्या है, इवन, दैट्स बाय इवन पावर में क्या था, चेक, व्हेन पावर इज इवन द इनइक्वालिटी साइन रिमेन्स सेम, सो वी कैन कंसीडर सेम साइड विदाउट चेंजिंग इनइक्वालिटी साइन. ओके, विदाउट चेंजिंग इनइक्वालिटी साइन. अब हम बात करते हैं 2 आ रहा है, जो 2 हमारा आ रहा है वहां उसकी पावर कितनी है, ऑड 1 है ना, दैट मीन्स x - 2 द पावर 1, दैट मीन्स ऑड पावर. ऑड पावर जब भी आएगी तो आपका इनइक्वालिटी साइन विल चेंज. इज इट क्लियर, इनइक्वालिटी साइन विल चेंज, तो आपका ये क्या हो गया, नेगेटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव. इज इट क्लियर. अब हम बात कर लेते हैं 1 कहाँ से आ रहा, ऑड पावर, अगेन द चेंज ऑफ कर्व, हमारे कर्व की नेचर क्या होगी, यहाँ भी क्या होगी, चेंज, दैट मीन्स पॉजिटिव. अब जो आपका -2/3 रूट आया उसकी पावर क्या है, ऑड, अगेन चेंज द नेचर ऑफ कर्व, दैट मीन्स नेगेटिव. अब जो आपका -4/5 रूट मिला है, पावर क्या, इवन, सो रिमेन्स नो चेंज द साइन, इवन पावर कम्स मीन्स नो चेंज द साइन. तो इस तरीके से हमारा ये बेबी कर्व बन के आता है. अब हमें फाइंड क्या करना है, हमारा रिजल्ट हमेशा उस इंटरवल में लाई करेगा जहां हमें लेस देन इक्वल टू का केस मिलेगा. इज इट क्लियर. तो नेगेटिव हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे मिल रहा है, दिस वन इज कंसीडर, दिस इज द कर्व, दिस वन रिजल्ट विल कंसीडर इन अवर सॉल्यूशन.
again this one is also negative, this result will also consider in our solution, and this one result, ये तीन से तीनों का common solution will be the solution of our this question. okay, तो अगर हम इसके solution की बात करें तो इसका solution क्या होगा, we can write x belongs to what, minus infinite, because negative minus infinite से कहाँ तक, minus 4/5, 4/5 पे क्या है, dark circle, so we can close interval union. okay, -1 पे क्या आपका डार्क, सॉरी -4/5 से -2/3. ओके, -4/5 से कहाँ तक जा रहा है, -2/3. अब -2/3 पे क्या, ओपन इंटरवल. ओके, नाउ टेक अ यूनियन, ये कहाँ पे, क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2 तक इज ऑल्सो कंसिडर्ड. दिस विल बी द रिजल्ट. ओके, दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ आवर गिवन क्वेश्चन. तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेबी कर्व. ओके, तो मैंने कुछ स्टेप्स भी बताए, साथ ही साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि बेबी कर्व विदाउट क्वेश्चन के प्रैक्टिस से बहुत कम ही होता है ठीक तरीके से समझ में आए. तो आई होप यू इजिली टू cover all the concepts and very easy to remind all the concept. okay, तो हम बस यही चाहेंगे कि सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं सारे के सारे को रिवाइज करो. ठीक है, रिवाइज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्वाड्रेटिक एंड इनइक्वालिटी को कवर अप कर लिया. अब इस क्वाड्रेटिक एंड इनइक्वालिटी की हेल्प से हम चाहेंगे कि अपने प्रीवियस क्वेश्चन को भी सारे के सारे डिस्कस कर लें. जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2006 से लेकर 2023 तक के सारे कवर अप कर लेंगे. ओके, तो बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी हमारी क्वेश्चंस पे, और हमारी प्रिपरेशन में भी एक बूस्टअप मिलेगा. ओके, ये हमारा थ्योरी पार्ट है, इसको अभी यहीं रखते हैं. बाकी वी विल कंटिन्यू द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड इनइक्वालिटी इन अ नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू.